Hello students, the next question is using partial fraction integrate or evaluate the following. So question first is integration of x upon x plus 1 into x plus 2. So in the examination, when we have to attempt this question, then first of all, how we will identify that, how we will integrate this integrand. We can integrate directly this function or using partial fraction we have to integrate. So first of all, you have to read the language of question. If here it is mentioned that using partial fraction integrate, then absolutely you have to solve this question using partial fraction. And in last video we discussed that when the integrand means the function whose integration we have to do, this is your integrand. So here integrand is a rational function whose numerator degree is 1 and denominator degree is 2, because 1 and 1 so 2. So numerator degree of numerator is less than degree of denominator. So this rational function is proper fraction. So when we are at this decision that the given rational function is a proper fraction, means simply first of all we have to factor the denominator, and here factor of denominator are also given and both the factors are linear. So in partial fraction we learn that the partial fraction of x upon x plus 1 into x plus 2, that is denominator both the factor are linear. So for the partial fraction we will consider two constant, first constant upon first factor plus second constant upon second factor. So whenever the denominators all the factor are linear, then equal to the number of factors we will consider the constant, पहला constant upon first factor plus second constant upon second factor. Now we have to find the value of a and b here first. So what we will do, in left x plus 1 into x plus 2 as it is, and in right side we will take the LCM. So x plus 2 into a plus of x plus 1 into b whole upon x plus 1 into x plus 2. So both sides this term is same. So it will be, when is implies that x will be equals to x plus 2 into a plus of x plus 1 into of b. So when all the factors are linear, then by critical solution directly we can find the value of a and b. How? Put first linear factor, that is x plus 1 is equals to 0, implies that x is equals to minus. जैसे ही मैं फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर पुट अप करूंगा, that is x will be equals to -1, और जहां जहां x plus 1 है वो 0 हो जाएगा. तो लेफ्ट में x की जगह आपका -1 आ गया, राइट हैंड साइड में x plus 1 0 है. सो दिस टर्म वेनिश होगी. यहां क्या बचा, x की जगह -1 plus 2, that is plus 1 into a, implies that a is equals to -1. a की वैल्यू आपके पास -1 आ गई. सिमिलरली सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट अप करेंगे. So x plus 2 बराबर 0 implies that x is equals to -2. समझ में आ रहा है आपको? x is equals to -2. तो जहां जहां x plus 2 है उसको 0 पुट अप कर देंगे, मतलब यहां पर x plus 2 ये 0 है तो a खत्म हो गया. लेफ्ट में x की जगह -2, राइट में यहां पर -2 plus 1, that is minus of b. Minus minus plus implies that b is equals to 2. So in this way, by critical solution, when all the factors are linear, then in this way we can solve. Otherwise we can compare also. compare कैसे करेंगे कि x को अंदर a को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x की सारी टर्म को साथ में लीजिए, x स्क्वायर के सारे टर्म को साथ में लीजिए कांस्टेंट, और फिर कंपेयर कीजिए दोनों साइड. सो सारे वो भी अपना अगले क्वेश्चन में करेंगे. या सारे लीनियर फैक्टर है तो आप क्रिटिकल सॉल्यूशन से भी आप निकाल सकते हैं. इस तरीके से a और b की वैल्यू आपके पास आ गई. प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ताकि आप आगे इसको सॉल्व कर सकें. नाउ नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे. अब आपके पास क्या है, a और b दोनों की वैल्यू आपके पास है.
सो अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में जहां जहां a और b आपने सपोज किया वहां इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो देखो स्टेप ध्यानपूर्वक देखिए आप, स्टेप में एग्जाम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करूं, चाहे इंटीग्रेशन a अपॉन, देखो इसी का अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखा था, a अपॉन, a की वैल्यू कितनी -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस ऑफ b कितना है 2 अपॉन x प्लस 2 dx। तो यहाँ ये a था और ये b, a और b को अपन ने सॉल्व कर लिया। नाउ इस कांस्टेंट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, -1 बाहर ले ले, 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस ऑफ 2 आउट ले लीजिए, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब देखिए 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log लीनियर, so it will be minus of log x plus 1 plus of twice log of x plus 2, क्योंकि ये भी 1 अपॉन लीनियर है, प्लस ऑफ c। नाउ सो अब देखिए ये जो -1 है इसको अपन यहां ले सकते हैं log of x plus 1 की होल पावर -1 प्लस log of x plus 2 की होल पावर 2 प्लस ऑफ c। समटाइम्स आप यहां कांस्टेंट भी log of c भी ले सकते हैं क्योंकि सारी टर्म log में है। सो नेक्स्ट स्टेप log of 1 upon x plus 1 plus of log of x plus 2 whole square plus of c, that's your answer. So this is the integration by using partial fraction. Please pause the video note down. Then question number second, using partial fraction solve. So question number second, integrate I is equals to 1 upon x square minus 9 dx। देखिए इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 upon x square minus a square से। 1 upon x square minus a square क्या होता है 1/2a log of x minus a upon x plus a, बट यहाँ आपको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है। देखिए तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब भी आपको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले आप रैशनल फंक्शन देंगे, न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की 2 है, सो ये डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिंपली अपने को डिनोमिनेटर की सबसे पहले फैक्टर करनी है। तो i बराबर क्या होगा 1 अपॉन x minus 3 into x plus 3 dx। बोथ द वेक्टर आर लीनियर, सो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन x minus 3 into x plus 3 will be equals to a upon x minus 3 plus b upon x plus 3। On solving 1 upon x minus 3 into x plus 3 will be equals to LCM लेंगे, तो x plus 3 into a plus of x minus 3 into b whole upon x minus 3 into x plus 3। These two terms will be cancel out, implies that 1 will be equals to x plus 3 into a plus of x minus 3 into b। Now using critical solution solving for a and b, so सबसे पहले अपन क्या करेंगे, put x plus 3 is equals to 0 implies that x is equals to minus 3। तो देखिए जहां जहां x है राइट में -3 पुट अप करना है, तो लेफ्ट में आपका 1 है, राइट में -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, ये होगा -3 में माइनस ऑफ 6b implies that b is equals to -1 upon 6। and similarly put x minus 3 is equals to 0 implies that x is equals to 3। जैसे ही x की जगह 3 पुट अप करेंगे तो यहाँ लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 प्लस 3 6 ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा 3 minus 3 0 into b, तो imply that a is equals to 1 upon 6। in this way we can find the value of a and b। अब अपन क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। so implies that I बराबर 1 upon x minus 3 into x plus 3 dx will be equals to a। what is a? a is your 1/6 upon x minus 3 dx plus
minus 1 by 6 upon x plus 3 dx. So 1 upon 6 integration 1 upon x minus 3 dx minus 1 upon 6 1 upon x plus 3 dx. देखिए अगेन 1 upon लीनियर तो ये आ जाएगा आपका 1 by 6 log of x minus 3 minus 1 by 6 log of x plus 3 plus of c, and that's your answer. So in this way, using partial fraction, we can integrate. So what the question was basis on first part of partial fraction, which we discussed in last video, कि when numerator degree is less than the degree of denominator and the denominator all factor are linear, then the number of equal to linear factor we consider the constant, and first constant upon first factor plus second constant upon second factor plus third constant upon third factor. Then on comparing or on the basis of critical solution, first we will calculate the constant, then we will put the value of constant and integrate both sides. And be very careful in integrate also constant को out लेने पर जो इंटीरियर इंटीग्रेंड होगा that will be 1 upon linear और उसका इंटीग्रेशन हमेशा log linear होगा. So this is the way. So pause the video now. Very important exercise है partial fraction. जो बच्चे कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हैं उनको मेरा सजेशन है कि पार्शियल फ्रैक्शन साइंस वाले बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा है इसलिए उनको थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन वैसे भी ये आर्टिकल बहुत ही इजी है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको केवल ये समझ में आ गया कि जो रैशनल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए. तो प्रॉपर कैसे होनी चाहिए, जो अपन ने 9th और 10th में पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि जब भी कोई भी रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है या इक्वल है तो सबसे पहले अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवीजन करने पर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिविडेंड आता है क्वोशिएंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, रिमाइंडर अपॉन जो डिविडेंड होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. उसका यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमेशा ध्यान दें कि फर्स्ट स्टेप की डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर करने हैं. डिनोमिनेटर के फैक्टर के 5 केस अपन ने डिस्कस किए थे कि अगर सारे फैक्टर लीनियर है तो जितने फैक्टर है उतने कांस्टेंट मान लें. कोई फैक्टर अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड की जो रिपीटेशन की मैक्सिमम संख्या है उसके इक्वल आपको क्या करना है, कांस्टेंट मानना है. कि अगर कोई फैक्टर जैसे x+3 लीनियर है और रिपीटेड 3 टाइम है तो x+3 होल पावर 3 के रेस्पेक्ट आप 3 कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे फैक्टर के रेस्पेक्ट जैसी भी सिचुएशन है. सो देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5th तक भी आपके जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट केस का बेसिस ही है. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, integrate I is equals to 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx. क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन हाउ वी विल अटेम्प्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई करना है कि हाउ वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. देखिए यहां पर जो रैशनल फ्रैक्शन है न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 1, 2 और 3 है. इसका मतलब ये कौन सा रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसका अपन डायरेक्ट फैक्टर दे रखे हैं और फैक्टर भी सारे लीनियर है. देखो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, तीनों फैक्टर लीनियर है. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equals to 3 फैक्टर है, 3 कांस्टेंट माने a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. समझ में आ रहा है. पीछे वाले रो में x minus 1, x minus 2, x minus 3 तीन लीनियर फैक्टर हैं तो तीन कांस्टेंट के अपन सपोज करेंगे a b c है ना. पहला कांस्टेंट पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट अपन दूसरा फैक्टर प्लस तीसरा कांस्टेंट अपन तीसरा फैक्टर. अब आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है. तो एलसीएम लेंगे दोनों साइड में. देखो तो लेफ्ट में तो 3x minus 1 upon
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और राइट में क्या आ जाएगा बेटे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू a प्लस ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू b प्लस ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू ऑफ c होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। देखिए ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। अब क्या करेंगे कि वैसे जो बेसिक नॉर्मल तरीका वो ये कि हमें इन दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करूं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करूं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फिर a से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और फिर c से, और फिर सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर की टर्म आएगी। मैं पहले राइट में x स्क्वायर की सारी टर्म को एक साथ, फिर x की सारी टर्म को एक साथ, फिर कांस्टेंट को एक साथ, और फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट में तो देखो केवल x की कोएफिशिएंट है 3, कांस्टेंट आपका -1 हो जाएगा, x स्क्वायर की टर्म तो इधर है नहीं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। तो राइट साइड में जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा वो लेफ्ट में 0 के बराबर होगा। कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, यहां तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे उसके लिए बता रहा हूं। फिर देखिए राइट में जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, राइट में जो कांस्टेंट आएंगे वो कांस्टेंट लेफ्ट में किसके बराबर -1 के। इसको बोलते हैं कंपेयर करके कोएफिशिएंट एबीसी की वैल्यू निकालना। बट जब सारे ही फैक्टर लीनियर हो तो हम क्रिटिकल सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन कैसे हैं, जैसे अपन ने पार्ट फर्स्ट में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते थे क्रिटिकल सॉल्यूशन से कि सारे फैक्टर को 0 के बराबर पुट अप करके रियल नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट कर लेते थे और राइट मोस्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालते थे। वैसे यहां पर क्या करना है, देखो तीनों फैक्टर लीनियर हो चाहे चारों लीनियर हो चाहे दो लीनियर हो तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एबीसी का। कैसे कि मैं सबसे पहले x-1 को 0 के बराबर पुट अप करूंगा। x-1 को 0 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ x = 1 आया। तो राइट साइड में आपको x = 1 की जरूरत नहीं, जहां जहां x-1 है वो सारी टर्म वैसे ही 0, देखो ये वाली 0 हो जाएगी, इसमें भी x-1 आ रहा है, ये भी 0, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। अब आप ये पूछेंगे कि सर आप कंपेयर करके भी निकाल रहे हो क्रिटिकल सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं, हमें क्या किससे करेंगे, जिसमें आपकी मास्टरी उससे करेंगे। और आपको वो मेथड अप्लाई करना है जिसमें आप क्वेश्चन को एज सून एज पॉसिबल आप अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि वहां यहां तो आप 2 घंटे तक पढ़ते रहिए, एग्जाम में आपको 3 घंटे में पूरा 36 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो x-1 पहले फैक्टर को 0 के बराबर पुट अप करा, क्वेश्चन पर आ जाइए। x-1 को 0 मतलब x की वैल्यू 1, तो लेफ्ट में x की जगह 1 का मतलब कितना हुआ 3 - 1, तो लेफ्ट में तो हो गया 2, राइट में ये दोनों टर्म 0 होगी तो केवल क्या करना, इतना सा देखना। तो देखो 1 - 2 -1 और यहाँ 1 - 3 -2, -1 - 2 + 2a, तो +2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाई दैट a की वैल्यू आ गई 1। तो ये इजी सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, x-2 को 0 के बराबर पुट अप करो, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 का मतलब लेफ्ट में तो कितना हुआ 6 - 1 5 हो गया। राइट में जहां जहां x-2 को 0, देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, केवल यहां पर देखिए जहां x-2 नहीं है तो x की जगह 2, 2 - 1 1 into -1, तो 1 - 1 -1 तो -b, इंप्लाई दैट b कितना आया -5, b की वैल्यू -5 आ गई। फिर थर्ड क्या करेंगे, पुट x-3 = 0, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 3, x की वैल्यू 3 होगी। जब x की वैल्यू 3 है मतलब जहां जहां x-3, तो देखो x-3 फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, तो थर्ड में c की वैल्यू देखो 3 - 1, राइट साइड में 3 - 1 2 into 3 - 2 1 into c, और लेफ्ट में 3 3 9 - 1 8, इंप्लाई दैट c बराबर कितना आएगा 8/2, दैट इज 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से अपन ने abc की वैल्यू निकाल ली। a कितना है, a = 2 है, b = आपका -5 है, c = 4 है। ये तीनों वैल्यू अपन क्या करेंगे यहां पुट अप करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन फर्स्ट। आप देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a = आपका कितना आया
a इज इक्वल टू आपका 2 है तो यहाँ 2 पुट अप कर दिया, b इज इक्वल टू क्या -5 है या -5 पुट अप कर दिया, c इज इक्वल टू आपका 4 है या 4 पुट अप कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना आपको क्लियरली, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ क्या किया, जहां ABC आपने सपोज किया उसकी वैल्यू ऊपर में डायरेक्ट यहाँ पुट अप कर दिए। चलिए नाउ इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका, तो देखिए 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 upon x minus 1 dx -5 आउट, तो 1 upon x minus 2 dx प्लस 4 आउट 1 upon x minus 3 dx। सारे 1 upon लीनियर है, 1 upon लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग लीनियर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस log of x minus 1 minus 5 log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 plus of c. This is your answer. So this is the integration by using partial fraction. तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, all three question in which numerator degree is less than the denominator and denominator factors are already given and all the factors are linear। और ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें लीनियर तीनों फैक्टर थे, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन है, बट वेरी इजी क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Now next question, question number 4, again integrate I is equals to x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। Again all the factors are linear। सो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखते पता चल गया न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। सो न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो गिवन फ्रैक्शन इज रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन। सो जब भी रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर करते हैं, फैक्टर इसमें डायरेक्टली दे रखे हैं, ऑल द फैक्टर आर लीनियर एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन। सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3, all three factor are linear, so first constant upon first linear plus second constant upon second linear plus third constant upon third linear। ओके, आप ABC की वैल्यू निकालनी है, ABC की वैल्यू प्रीवियस मेथड से तो डायरेक्ट लिख देते हैं, implies that x is equal, देखिए आप अपन LCM नहीं लिख रहे कि देखो लेफ्ट में डिनोमिनेटर ये है, राइट में एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर यही आ गया, वो लेफ्ट के एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट न्यूमरेटर की टर्म लिख रहे हैं। सो x minus 2 into x minus 3 into of a, x minus 1 into x minus 3 into of b, और x minus 1 into x minus 2 into of c। So these are the right side terms। आप क्या करेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया आपने क्रिटिकल सॉल्यूशन से, तो सबसे पहले इस स्टेप में क्या करेंगे, पुट x minus 1 is equals to 0, implies that x is equals, जहाँ x से 1 पुट अगर लेफ्ट में आ गया 1, राइट में ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि x minus 1 बराबर 0। तो ये हो गया -1 एंड -2 into of a, तो implies that a is equals to 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही x minus 2 is equals to 0, implies that x बराबर 2, तो लेफ्ट में आएगा 2, राइट में क्या आएगा, जहां जहां x minus 2 0, पहली टर्म 0 हो जाएगी और तीसरी 0 हो जाएगी। सेकंड में 2 minus 1 1 into 2 minus 3 -1 into b, तो implies that b is equals to -2, तो b की वैल्यू यहां पर आ गई -2। सिमिलरली थर्ड फैक्टर x minus 3 is equals to 0 पुट अप करेंगे, implies that x is equals to 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब जहां जहां x minus 3 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट में तो बचा 3, x की जगह राइट में जहां जहां x 3 minus 1 2 into 3 minus 2 1 into c, implies that c is equals to 3/2, तो c की वैल्यू आ गई आपकी
3/2। ये तीनों वैल्यू आपको क्या करना, एबीसी की जगह पुट अप करना एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। implies that integration x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx will be is equal to a upon a कितना आया 1/2 में डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूं तो 1 upon 2 into x minus 1 dx, b की वैल्यू कितनी -2 इंटीग्रेशन 1 upon x minus 2 dx प्लस c की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटीग्रेशन 1 upon x minus 3 dx। so all that term are क्या है आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन 1 upon लीनियर है। so 1 upon ध्यान रखिए कहां से लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx। 1 upon x किसका डेरिवेटिव है log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x प्लस ऑफ c। so आंसर आएगा 1/2 log of x minus 1 minus 2 log of x minus 2 plus 3/2 log of x minus 3 plus of c। so this is the integration using partial fraction। so please pause the video, note down। मेरी सपनों की रानी कब आएगी। Let us see question number 5. Question number 5 is integrate I is equals to 2x upon x square plus 3x plus 2 dx। ओके देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्या बता रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है, मींस वी कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। सो इंटीग्रेशन 2x अपॉन क्या फैक्टर होंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस ऑफ 2 dx। ओके सो I विल बी इज इक्वल्स टू 2x अपॉन इनमें से x कॉमन ले ले x प्लस 2 प्लस ऑफ 1 x प्लस 2 dx। इसका मतलब इंटीग्रेंड के जो डिनोमिनेटर के फैक्टर आ रहे हैं वो एक x प्लस 1 है, दूसरा x प्लस 2 dx है। सो बोथ द फैक्टर आर लीनियर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, दो फैक्टर है, दो कांस्टेंट लीजिए, पहला कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट में 2x है, राइट में x प्लस 2 इंटू ऑफ a प्लस x प्लस 1 इंटू ऑफ b। सो बाय क्रिटिकल सॉल्यूशन से फटाफट पुट अप करिए। सबसे पहले x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाई दैट x इज इक्वल्स टू -1, तो लेफ्ट में आ गया -2, राइट में जहां जहां x प्लस 1 है 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह माइनस है, -1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज a इज इक्वल्स टू आ गया आपका -2। वैसे x प्लस 2 बराबर 0 पुट अप करेंगे, इंप्लाई दैट x बराबर -2, तो लेफ्ट में आ जाएगा -4 और राइट में क्या होगा, ये 0 या -2 प्लस 1 -1b, तो माइनस माइनस प्लस मतलब b की वैल्यू आ गई 4। इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx विल बी इक्वल्स टू a कितना है -2 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b कितना है 4 1 अपॉन x प्लस 2 dx। देखो दोनों लीनियर है तो राइट में क्या होगा -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस ऑफ 4 into log of x plus 2 plus of c। This is the integration of this using partial fraction। So please pause the video now।